Hello students, very good morning. Myself Rakesh Yadav, representing Santipani Higher Secondary School Rajoda, and we are studying class 12th related maths chapter number 5. Continuity and differentiability is the topic's name, and we are doing exercise 5.5 of NCERT. It is the last question of this exercise, and this question is, if u, v and w are the functions of x, then show that, तो हमको ये शो करना है कि d by dx of u into v into w will be equal to du by dx into v into w plus u into dv by dx into w plus u into v into dw by dx. इन टू वेज हमको ये दो तरीके से करना है. फर्स्ट बाय रिपीटेटिव एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट, एक बार हमको रिपीटेटेड एप्लीकेशन यूज करनी है प्रोडक्ट की, और सेकेंड टाइम हमको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से इसको सॉल्व करना है. सो लेट इट बी डन बाय आवर फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट. मैं आपको इसको पहली बार रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट से करके बता रहा हूं इसके सॉल्यूशन में. सॉल्यूशन फर्स्ट. सो हियर LHS we have taken, that is equal to d by dx of u into v into w. Now see what we will do. हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इसको अकेले को मैं फर्स्ट फंक्शन ले रहा हूँ और इन दोनों को मिला करके मैं सेकेंड फंक्शन ले रहा हूँ. दिस वन लाइन इज देयर मीन्स इट इज फर्स्ट फंक्शन एंड टू लाइन्स मीन्स इट इज सेकेंड फंक्शन. सो d by dx of f1x into f2x is equal to first function into differentiation of second plus second function into differentiation of first. Here it is first function and there it is second function. So see what we will do. First function into differentiation of second function plus second function means v into w differentiation of first function. First function means that is u, so it will be du by dx. Now we may apply here again same formula. This one, it is the formula part. This one is formula part. So this same formula we are applying here again by taking this first function and this one as second function. Now it is f1x and this one is f2x. So again u is as it is. Now first function into differentiation of second, that is dw by dx, plus second function into differentiation of first means dv by dx, plus du by dx we are putting in front, इसको आगे ले रहे हैं हम, into v into w. अब इसको आगे देखिए, ये हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं. So it will become equal to u into v into dw by dx, u into v into dw by dx plus u into dv by dx into w. ऑर्डर वाइज लिख रहा हूं मैं इसको, मतलब u v w then u v w. So it will become u into dv by dx, u into dv by dx into w plus this du by dx into v into w, du by dx into v into w. So this is only our RHS. See, you may write it in proper order.
इसको आप प्रॉपर ऑर्डर में लिख लीजिए। पहले u वाला पार्ट वाला डिफरेंशिएशन वाला ले लीजिए। सो du बाई डी एक्स इंटू वी इंटू डब्ल्यू प्लस अब dv बाई डी एक्स वाला फंक्शन ले लीजिए। सो u इंटू dv बाई डी एक्स इंटू डब्ल्यू प्लस लास्ट में dw बाई डी एक्स वाली टर्म ले लीजिए। सो इट विल बी u इंटू वी इंटू dw बाई डी एक्स। So this is only our RHS. So we can say that it is proved, hence proved. So this first part of this question number 18 is over. Now see second process, logarithmic differentiation. So let y is equal to u into v into w. This we have assigned u into v into w on taking log। अब हमने log लिया दोनों साइड, तो log लेने पर ये क्या हो जाएगा, log y इज इक्वल टू log u इंटू v इंटू w, बिकॉज log m इंटू n इंटू p इज इक्वल टू log m प्लस log p। ये फॉर्मूला लगा सकते हैं हम यहाँ, इट इज द फॉर्मूला log m इंटू n इंटू p इज इक्वल टू log m प्लस log p। सो log y इज इक्वल टू व्हाट, log y इज इक्वल टू log u प्लस log v प्लस log w। Now we can differentiate it on differentiating with respect to x। अब जब हम इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का 1/y हो जाएगा और साथ में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू log u का 1/u होगा और u का du बाई डी एक्स प्लस log v का डिफरेंशिएशन 1/v होगा और साथ में dv बाई डी एक्स, फिर log w का 1/w होगा और साथ में dw बाई डी एक्स। अब y को हम यहाँ से ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं। सो दिस विल बिकम dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन u इंटू du बाई डी एक्स प्लस y अपॉन v इंटू dv बाई डी एक्स प्लस y अपॉन w इंटू dw बाई डी एक्स। हमने क्या किया, y का तीनों जगह पर मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। सो नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ y हियर विच इज uv w। सी on putting value of y it will become d by dx of uvw is equal to u into v into w upon u du by dx plus u into v into w upon v into dv by dx प्लस u इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन w इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। सो जस्ट अ सेकेंड, u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन v इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस u इंटू वी इंटू डब्ल्यू अपॉन w इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। सो हियर u is cancelled, here v is cancelled and here w is cancelled. Now you may write the remaining part which is only our
RHS. So lastly, what we got? C. d by dx of UVW is equal to du by dx into V into W, du by dx into V into W प्लस, अब हम पहले u को लिख लें, फिर dv by dx लिख करके w लिख देते हैं. तो u इंटू dv by dx इंटू w प्लस u इंटू v इंटू dw by dx. So LHS is equal to RHS. See what we have got? LHS is equal to RHS. This is only our RHS. So we may write here now, hence proved. So this exercise 5.5 is now over. Now see our exercise 5.6 which we are starting today. If x and y are connected parametrically, अगर x और y पैरामेट्रिकली कनेक्टेड हैं बाय द गिवन इक्वेशंस, जो इक्वेशंस दी हैं उनसे, विदाउट इलिमिनेटिंग द पैरामीटर, पैरामीटर को इलिमिनेट किए बिना हमको dy बाई dx की वैल्यू निकालनी है. पैरामीटर यहाँ पर क्या है? ये t जो है t के फॉर्म में बताया है x और y को, तो ये पैरामीटर्स दे रखे हैं. अब आपको यहाँ पर इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना है कि t की वैल्यू को x और y की टर्म्स में सॉल्व करे बिना आपको dy बाई dx निकालना है. दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट मोटिव which we have to remember always. Now in which manner we can find here dy by dx? Let us discuss this. आपको ध्यान हो तो आपने पहले dy by dx निकालने के लिए एक चीज सीखी थी कि dy by dx is equal to, आप क्या करते थे, आप किसी कोई y जो फंक्शन होता था वो अगर x का फंक्शन नहीं होते हुए कुछ और फंक्शन होता था, जैसे मान लीजिए x का की पावर x होता था, तो आप इस x को या तो u पुट करते थे या मान लीजिए यहाँ पर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर इज इक्वल टू t पुट करते थे, तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा. मतलब मान लीजिए इसको मैंने कोई सा फंक्शन लिया, सपोज x रेज़ टू द पावर cos थीटा लिया या cos x लिया, तो cos x को आप क्या करेंगे, u पुट करेंगे, तो आप इसको du बाई dx सॉल्व करते थे. फिर ये y जो है वो जिसका फंक्शन होता था, मतलब t के फॉर्म में अगर होता था या cos x का स्क्वायर होता था, इस टाइप से कोई फंक्शन होता था तो आप कुछ पुट करते थे. cos x का स्क्वायर हुआ तो यहाँ पर आप t इज इक्वल टू cos x रखते थे, ये आपको ध्यान होगा. तो आप y को t का फंक्शन बनाते थे और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते थे. मतलब आप dt बाई dx का इंटू करते थे, dt बाई dx का इंटू करते थे dy बाई dt में. ये आप पहले करते आए हैं, तो इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं बताया. लेकिन अब अगर मान लीजिए इसमें जो फंक्शन है यहाँ पर dx बाई dt निकलेगा और यहाँ पर dy बाई dt निकलेगा, तो इस केस में हम क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt. देखिए इसको ध्यान से, ये यही पार्ट है जो हमने डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख दिया. अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूं तो ये क्या हो जाता है, dt बाई dx. देखिए इसको ध्यान से, ये dy बाई dt है. अगर मैं इस यहाँ डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में बदलूंगा तो ये ऊपर जा करके क्या हो जाएगा, dt बाई dx. देखिए ये dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt का मतलब क्या हुआ, अगर इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में बदलता हूँ तो ये dt बाई dx हो जाता है. डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर हो जाता है, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर हो जाता है. मतलब आपको यहाँ जो फॉर्मूले यूज करना होंगे वो इस फॉर्मेट में करना होंगे, इन दिस वे, जो कि हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में मैं आपको अप्लाई करके बता रहा हूँ. सो यू कैन सी dx बाई dt वी कैन फाइंड हियर ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t. यहाँ आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसे, तो कांस्टेंट क्या है, 2a. इसको बाहर निकाल लिया.
चूंकि ये t का फंक्शन है तो ऑफ कोर्स इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, मीन्स d बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर करेंगे। और ये वाला पार्ट dy बाई डी टी, तो यहाँ से a कांस्टेंट को बाहर निकाला, d बाई डी टी ऑफ t रेज टू द पावर 4 निकालेंगे, तो dx बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 2a इंटू 2t, और dy बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से a इंटू 3t स्क्वायर, सॉरी 4t स्क्वायर, 4t क्यूब, 4t क्यूब। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n, x की पावर n माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 1 दैट इज 3, एंड हियर इट इज 2, t रेज टू द पावर 2 माइनस 1 दैट इज 2t। तो dx बाई डी टी की वैल्यू आपके पास आई 480 और dy बाई डी टी की वैल्यू आपके पास आई 480 क्यूब। अब आपको क्या निकालना है, सॉरी इट इज dx बाई डी टी। अब आपको क्या निकालना है dy बाई dx निकालना है, ये आपका एम है। देखिए फाइंड dy बाई dx इन एवरी केस। तो आपने dy बाई dx का फॉर्मूला क्या लिखा है वहां पर, जो इस चैप्टर का बेस है, सॉरी इस एक्सरसाइज का बेस है, वो ये वाला पार्ट है। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करके हमने लिखा dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो हम यहाँ वही लिखेंगे dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या है 4at क्यूब और यहाँ 4at। अब ये 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, और इस t से एक पावर इसकी कम हो जाएगी क्योंकि इसकी पावर 1 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। मीन्स dy बाई dx की वैल्यू पैरामीटर्स t के फॉर्म में t स्क्वायर जो है वो रिजल्ट आ गया आपका t स्क्वायर। दिस इज ओनली योर रिजल्ट। नाउ सी आवर सेकेंड क्वेश्चन। हियर फंक्शन x इज फंक्शन ऑफ थीटा। यहाँ x जो फंक्शन है वो थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है। तो यहाँ पैरामीटर्स थीटा है, तो अब t की जगह पर यहाँ पर थीटा हो जाएगा, सिर्फ इतना सा चेंज होगा। तो dx बाई डी ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जब आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा, और ऐसे ही इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b d बाई डी थीटा ऑफ कॉस थीटा। नाउ दिस विल बिकम dx बाई डी थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन यहाँ पर भी माइनस साइन थीटा होगा, तो dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू माइनस बी साइन थीटा। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है dy बाई dx कैलकुलेट करना है, जो कि क्या होता है dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो अब आप इसकी वैल्यू डाल सकते हैं। dy बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस बी साइन थीटा है और dx बाई डी थीटा की वैल्यू माइनस ए साइन थीटा है। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट वी गॉट, इट इज इक्वल टू b अपॉन ए। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और सेकेंड वाले क्वेश्चन का आंसर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू b अपॉन ए। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन, x is equal to sin t and y is equal to cos 2t. See, here parameters t is there. Here also parameters t is there. In our previous question, the parameter was theta. In first question, the parameter was t. So that parameter is that particular part in which form x and y is expressed. Parameter क्या होता है? वो होता है जिसमें कि x और y को एक्सप्रेस किया जाता है। तो यहाँ किस में एक्सप्रेस किया गया है? t में। तो यहाँ t पैरामीटर है, यहाँ भी t में एक्सप्रेस किया गया, तो यहाँ t पैरामीटर है। सेकेंड वाले क्वेश्चन में उसको थीटा के फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया था, तो वहाँ थीटा पैरामीटर था। अब हमको यहाँ पर dx बाई डी टी निकालना है और dy बाई डी टी। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t,
तो यहाँ क्या हो जाएगा, dx बाई डी टी, सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा, ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ साइन t एंड dy बाई डी टी इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ cos 2t। अब देखिए यहाँ cos 2t है, इस बात का ध्यान रखना, तो dx बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, cos t हो जाएगी। ये तो सिंपल है, sin t का डिफरेंशिएशन cos t होता है, इट इज़ सिंपल, बट हियर इट इज़ फंक्शन ऑफ फंक्शन वी कैन से, क्योंकि ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, लेकिन ये एक अलजेब्रिक फंक्शन और है इसमें, क्योंकि 2t है तो 2t का भी डिफरेंशिएशन करना होगा। तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस साइन 2t d बाई डी टी ऑफ 2t। 2t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है, तो ये 2 इंटू 1 दैट इज 2, तो ये dy बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, ये cos 2t का तो अपन ने माइनस साइन 2t लिखा था, 2t का डिफरेंशिएशन 2 हो गया, सो इट विल बी माइनस 2 साइन 2t। अब आप dy बाई डी टी dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था आपको स्टार्टिंग में। तो dy बाई डी एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू आपके पास है माइनस 2 साइन 2t और इसकी cos t। आप चाहें तो यही आंसर लिख सकते हैं, लेकिन अगर कोई सा सॉल्यूशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक जो कि इजी है और सॉल्व हो सकता है, तो इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस 2 इंटू 2 साइन टी कॉस टी, क्योंकि साइन 2t का फॉर्मूला 2 साइन टी कॉस टी है और इसके अपॉन में कॉस टी, तो यहाँ कॉस टी कैंसिल हो रहा है, तो अब ये माइनस 4 साइन टी हो गया। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस 4 साइन टी। दिस इज ओनली अवर आंसर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, x इज इक्वल टू 4t है और y इज इक्वल टू 4 अपॉन t है। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, इन सॉल्यूशन ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू 4 d बाई डी टी ऑफ t। ऐसे ही यहाँ dy बाई डी टी जब हम लिखेंगे तो यहाँ विशेष ध्यान रखेंगे, d बाई डी टी ऑफ y जब हम लिखेंगे तो 4 कांस्टेंट को बाहर निकाला, d बाई डी टी ऑफ t रेज टू द पावर माइनस 1 लिखेंगे इसको, ये अपॉन में है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर में माइनस 1 हो जाएगा। सो d बाई डी टी ऑफ t रेज टू द पावर माइनस 1। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये dx बाई डी टी की वैल्यू यहाँ से सीधे 4 हो जाएगी, क्योंकि t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 1 होता है और यहाँ पर t की पावर माइनस 1 है, मीन्स dy बाई डी टी इज इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 t रेज टू द पावर माइनस 2, ये t की पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो dy बाई डी टी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर। अब आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी। तो dy बाई डी टी की वैल्यू माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर है और इसके अपॉन में क्या है, 4 है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 4 अपॉन टी स्क्वायर, जब इंटू में बदलेंगे तो ये 1 अपॉन 4 हो जाएगा, यहाँ 4 के अपॉन में 1 है तो इंटू में बदलेंगे तो 1 अपॉन 4 हो जाएगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, मतलब हमारा आंसर क्या आया, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर आया। dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो है, फाइनल आंसर हमारा यहाँ पर आया माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन 4th. So it is over now. Now
up to here only we are doing today. So thanks a lot for watching our video of Sandipani Higher Secondary School Rajoda. Like our channel, subscribe it and share it as much as possible, and please do study.